Okay, yes. Good evening, student. Very, very good evening. And I welcome you on the Filler Form app. Here I am Dinesh Kamli Bhamane, your mentor for English Literature UGC NET JRF. So, student, our Filler Form app is one of the number one platform for the UGC NET JRF in India. And here I would like to tell you that we are on the different platform. You can join us on Instagram, Telegram, and WhatsApp also. And these are our courses you can purchase. You know, it is. I would like to tell you that first paper for 6 months you can purchase within rupee. You can pay only 1499 rupees. Student best teacher. We provide you best teacher of each paper. You can purchase. Good evening. Very good evening. Okay, and then second paper, 2,499 rupees for 6 months. You have to pay only 2,499 rupees. So these are our courses, student. If you want to, we'll provide you notes, previous year question paper with answer and 100 plus mock test. Student, if you want to get benefit, I'm talking about those students who are new and first time they're watching. Use my code DISENG10 to get 10% off. This code can be used. And here I am Dinesh Kamli Brahmane. Once again, I welcome you. And let's begin today's class. Before we start the class, once again, please put the message P. Present, please. Present. Send the message P. Please. If you are present, then please show me. Indicate to me. Yes. Give me thumbs up. है ना? Yes. Okay. Poonam, Priyanka. Okay. Welcome. है ना? Okay. Yes. Okay. Yes. Hi. I hope you all will be studying very well, and now I think your confidence will be boosted, है ना? And when I take the revision class, you enjoy the revision class, you learn very much. So I would like to tell you that we will revise the topic. I will revise all the content once again, and briefly within hours I will revise all the topic. Okay. No, today I will post it. है ना? Today all the topics until now, whatever I have taught you, I will post everything. Okay. Actually, विलियम शेक्सपियर के ऊपर पूरा कंबाइन पीडीएफ नोट्स शेयर करूंगा. ये सोच के मैंने अभी तक नहीं किया है. टुकड़ों में ना बांट के उसको कंबाइनली टुडे आई विल पोस्ट इट. ओके. I will send the PDF today. Okay. चलिए. So let's begin today's class and let us discuss about William Shakespeare's sonnets. Student, when we talk about William Shakespeare sonnet, it is a 14 line poem. एक 14 line की बहुत ही short poem है, which is very famous in English literature. So as far as William Shakespeare is concerned, so he has written 154 sonnets. Student, I would like to tell you that if you are in the state, so you can qualify state set also, state eligibility test. है ना? जो स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी आप क्वालिफाई करें. कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल कम होता है तो वहां पर ऐसे फैक्ट आ जाते हैं. स्टूडेंट, आपको ये भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं. शेक्सपियर पब्लिश्ड 154 सोनेट्स, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1609. रिमेंबर कब पब्लिश हुई है? 1609 में. और ये क्वार्टो फोलियो यानी चौथा एक फोलियो आया था. फर्स्ट, सेकंड, फॉल्स फोलियो एंड या थर्ड फोलियो एंड क्वार्टर फोलियो. 4 फोलियो आई है टोटल. आप देखिए. और किसके द्वारा? थॉमस थॉर्प के द्वारा. रिमेंबर. ठीक है ना? उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ पोएम सोनेट्स के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं. रिमेंबर 138 एंड 144. सोनेट नंबर 138 एंड 144 है प्रीवियसली पहले ही पब्लिश कर दी गई थी. है ना? ये कब? 1599 में. बाकी जो सोनेट है 1609 में पब्लिश की गई थॉमस थॉर्प के द्वारा. ये याद रखना आपको. ठीक है. 1599 में ही 138 और सोनेट नंबर 144 ऑलरेडी पब्लिश्ड. रिमेंबर दिस फैक्ट.
यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको रिमेम्बर करना है। जो पहले जो सोनेट से 17 फर्स्ट 17 तक 1 to 17 एक से लगा के 17 तक की जो सोनेट्स हैं उनको प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, जो एड्रेस की गई है एक यंग मैन को या उनके फ्रेंड को आप कह लीजिए, जिनसे आग्रह करते हैं पोएट कि उनसे कहते हैं कि आप शादी कर लें, गेट मैरी एंड हैव चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू इमोर्टलाइज हिज ब्यूटी बाय पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अपने ब्यूटीफुल फ्रेंड को वो आग्रह करते हैं, अर्ज करते हैं कि गेट मैरी, ताकि जो आपकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर हो सके, ऐसा आग्रह करते हैं। 18 से लगा के जो 126 तक जो पोएम्स हैं वो फेयर यूथ सोनेट्स कही जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको इसमें भी द अदर सोनेट्स एक्सप्रेस्ड द स्पीकर्स लव फॉर अ यंग मैन ब्रूड अपॉन लवलीनेस डेथ एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ठीक है, और यहाँ कुल मिला के ये पूरी सोनेट जो है 1 से 26 है ना, यहाँ पर देखिए मतलब ये टोटली जो दोनों ये जो एक से लगा के 126 की जो पोयम है 126 टोटल आप देखिए, ये इनके आप कह सकते हैं विलियम हर्बर्ट या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, है ना, ध्यान रखना, या मिस्टर डब्ल्यू एच, शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर डब्ल्यू एच। रिमेंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Sonnet number 1 to 126. These sonnets are dedicated, probably dedicated to Mr. W.H., namely William Herbert, है ना, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ठीक है, याद रखना, एक से लगा के 126 तक की यूनिट मिस्टर डब्ल्यू.एच. को डेडिकेटेड है। ओके, और इनका नाम ये भी हो सकता है हेनरी रियोथेस्ली। ठीक है ना, ये देखिए हेनरी रियोथेस्ली, ये देखिए कंफर्म नहीं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है, प्रोबेबली लिया है। एग्जैक्ट उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम किसी सोनेट में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये माना जाता है या तो ये विलियम हर्बर्ट है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, या हेनरी रियोथेस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इन दोनों में से किसी एक को डेडिकेटेड है। शॉर्ट नेम है वो WH है। याद आया, कुछ प्रश्न बन सकता है। Wriothesley is also the dedicatee of William Shakespeare's poem Venus and Adonis and Rupi of Lucrece। ठीक है ना, ये जो Venus and Adonis और रूपी ऑफ ल्यूक्रेसी, इसमें भी जो है वो उन्होंने रियोथेस्ली को ही डेडिकेट किया हुआ, तो ऐसा माना जाता है। इसके बाद की जो पोयम है स्टूडेंट 127 टू 152, ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। डार्क लेडी या बेलोव्ड, है ना, शी इज यू कैन से so in sonnet 114 she is described as my female evil and my bad angel. She is identified as Eileen Florio or Lucy Morgan, a fallen woman also called Lucy Negro or Emilia। ठीक है ना, तो ये थोड़े से कुछ फैक्ट हैं किसी सोनेट्स को लेकर के, ये आपको ध्यान रखना है। और these sonnets are called the dark lady, है ना। The poet speaks of mysterious and beautiful mistress who has black hair and raven black eyes, है ना, काली आंखें, घने बाल, है ना, एक सुंदर और रहस्यमयी महिला को, या जो सुंदर स्त्री को ये डार्क लेडी है, उसको जो है डेडिकेट किए गए हैं। ठीक ना। और लास्ट जो 153 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, 153 और 154 ये क्या है, ये किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है? क्यूपिड, गॉड ऑफ लव। पूछा जा सकता है हु इज क्यूपिड, गॉड ऑफ लव। राइम स्कीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आज आपको मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन टुडे व्हाट इज राइम स्कीम, है ना। राइम स्कीम ABCD जैसे राइम स्कीम आपको जानते हैं, हाँ, यस यू कैन से, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं इन डिटेल, ठीक है ना। आई सी, अब यहाँ पर जो है ABAB, व्हाट इज राइम स्कीम, एनीबडी कैन टेल मी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज राइम स्कीम? टेल मी, डू यू नो द राइम स्कीम? चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक मैं आपको एक लेट मी टेल यू वन कोटेशन, ठीक है, लेट मी टेल यू वन कोटेशन। जैसे एक बहुत शानदार, एक बहुत मोटिवेशनल बात है कि हिंदी में आपको पहले बताऊं, लेट मी टेल यू दैट, जैसे
गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल लास्ट के वर्ड्स राइम हो, है ना। गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अब यहाँ पर देखिए कर, कर, र, ये राइम हो रहा है, ये सर नो राइमिंग हो रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, यस पूनम, नाइस। तो ये क्या है, ये जो है इसको कहते हैं हम राइमिंग स्कीम। तो शेक्सपियर की सोनेट्स की सारे सोनेट्स की 154 सोनेट्स, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइम स्कीम है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। 99 में सोनेट नंबर 99 याद करना है ना। ये देखिए 99 में क्या है, कंटेन 15 लाइंस, यानी इसमें आप ऐसा याद रख सकते हैं 99 में 1 करेंगे तो 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ 100 में से एक लेके इधर डाल दिया 1, ये है ना, ऐसा कुछ आप क्लू रख सकते हैं। तो इधर 15 हो गई, 14 में 100 में का -1 लगा के इसको 15 कर दिया, ऐसा कुछ याद रख के ट्रिक याद कर सकते हैं। सोनेट नंबर 99 में कितनी लाइंस है, 15 लाइंस है। कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं, तो उसमें हमने कल बताया था आपको। सोनेट नंबर 1, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स विद डिजायर इंक्रीज, बहुत प्यारी सोनेट है, एंड इट इज डेडिकेटेड टू फ्रेंड मिस्टर WH। और WH कौन हो सकता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है, जिनसे ये देखिए वंस अगेन, in these sonnets the poet persuades his friend Mr. WH to start a family so that his beauty can live on to the next generation through his children, okay। See, sonnet 18, shall I compare thee to a summer's day, है ना, shall I compare thee टू अ समर्स डे, है ना। यहाँ पर भी क्या है, वो मतलब कह रहे हैं कि क्या मैं आपकी तुलना क्या है, समर्स डे, एक जो बहुत ही वाइट ब्राइट डे होता है उससे तुलना करूं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हिज मोस्ट ऑफ द पोएम, बहुत ही प्यारी मतलब लव पोएम आप कह लो, इटरनल स्पिरिचुअल पोएम्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू, लिटरेचर इज लाइफ स्टूडेंट, लिटरेचर मेक्स अवर एटीट्यूड। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि लिटरेचर हमारे सोच को, हमारे एटीट्यूड को बनाता है, ठीक है। So in this sonnet, he described the young man's great beauty and suggests that his poetry is eternal, है ना। मतलब अगेन वंस अगेन लेट मी रिमाइंड, इस पोएम में भी क्या है, वो एक यंग मैंस की महान सुंदरता को क्या है, चित्रित करते हैं, एंड सजेस्ट दैट हिज पोएट्री इज इटर्नल, इटर्नल मतलब आंतरिक रूप से, अंतःकरण से आती है, and ends with saying that as long as there are people who can still read the sonnet, the young man's beauty will still be there। कितनी प्यारी बात कह रहे हो इस सोनेट में, ये सानो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। सो कितनी गहरी बात कह रहे हैं स्टूडेंट, लिसन। वो कह रहे हैं कि जब तक मतलब एज लॉन्ग, एंड एंड्स विद सेइंग, क्या कहते हैं, दैट एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल हु कैन स्टिल रीड द सोनेट, यानी जब तक सोनेट, जब तक लोग हैं और जब तक वो इस सोनेट को पढ़ते रहेंगे, तब तक उस व्यक्ति की, उस जो यंग मेंस यानी उस युवा व्यक्ति की क्या सुंदरता बनी रहेगी। यानी और देखिए आपने कब लिखी उन्होंने, सो है ना 1600, आप देखिए 1600 इन 1600, जो बात उन्होंने कही थी आज से 423 साल पहले लगभग, ये साथ नो आज से 425-23 साल पहले उन्होंने कही थी, 1609 में पब्लिश हुई है, और आज भी हम पढ़ रहे हैं नहीं, यस आर नो, उस व्यक्ति की सुंदरता के बारे में पढ़ रहे कि नहीं, अमर बात है या नहीं, यस आर नो। सी दूरदर्शिता देखिए आप, आज से 400 years ago, approximately 400 years ago, he assumed he has written, 400 साल पहले ये बातें लिखी है कि जब तक लोग रहेंगे, जब तक वो मेरी सोनेट को पढ़ते रहेंगे, तब तक उस यंग मैन की ब्यूटी क्या है, बनी रहेगी। आप देखिए, और आज हम पढ़ रहे हैं उसकी, आप ब्यूटी को इमेजिन कर रहे हैं, यस आर नो, गॉट इट। सी शेक्सपियर्स गे एटीट्यूड is revealed in this sonnet, ठीक है। अब आज थोड़ा सा इन डिटेल लेट अस डिस्कस, कुछ एक आध सोनेट के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि क्या इनकी जो स्ट्रेटजी है, क्या इनकी राइमिंग स्कीम किस तरीके से है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा जानकारी में आ जाए। सोनेट नंबर 23 में हम बात करें, सोनेट 23 also known as an unperfect actor on the stage, ठीक है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, सोनेट ये इन इंग्लिश लिटरेचर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट once again let me remind you,
किसी भी सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने किसी सोनेट का टाइटल नहीं दिया है, या हम इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी पोयम है, द पोयम विच डू नॉट हैव प्रॉपर टाइटल, तब हम क्या करते हैं? यस टेल मी। किसी भी पोयम का जब प्रॉपर टाइटल नहीं होता है तब हम क्या करते हैं? यस टेल मी स्टूडेंट। एट द टाइम व्हाट वी डू, टेल मी, व्हाट डू वी डू? If there is no proper title, there is no proper title is given, then what is the title of the particular poem? Yes, tell me. चलिए, let me tell you. तब हम क्या करते हैं कि जो पोयम, यस, यूज पोयम की फर्स्ट लाइन। ओके, गुड, नाइस। जो उस पोयम की फर्स्ट लाइन होती है वही उस पोयम का टाइटल माना जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? सी, so now let us discuss the sonnet number 23, also known as an unperfect actor on the stage, is number 23। 23 पर है of 154 sonnets। 154 sonnets में से, है ना, कौन से नंबर की है ये? 23 है। दैट शेक्सपियर रोट ओवर हिज लाइफ टाइम, ठीक है ना, अपने जीवन काल में जितनी उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज पार्ट ऑफ द फेमस फेयर यूथ सीक्वेंस, फेमर फेयर यूथ सीक्वेंस, यानी ये 123 क्या है, 126 तक किसको इन्होंने डेडिकेट किया है ना, अपने फ्रेंड को, यूथ को। फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स, नंबर्स 1 थ्रू 126, ये देखिए, है ना। एज आई टोल्ड यू, एक से लगा के, है ना, एक से लगा के 126 तक किसको डेडिकेटेड है? एज आई टोल्ड यू, फेयर यूथ सीक्वेंस, यानी अपने फ्रेंड को आग्रह कर रहे हैं, कहीं पर अपने फ्रेंड की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए सारी सोनेट्स, सो दैट यू कैन, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू माय एटीट्यूड रिगार्डिंग द लिटरेचर। अब यहाँ पर देखिए, वी आर हैविंग कन्वर्सेशन, we are you can say we are discussing the mind of the William Shakespeare regarding beauty। क्या सुंदरता के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या साइकोलॉजी, क्या क्या आइडियोलॉजी है, क्या फिलोसॉफी है ना, प्रेम को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, क्या उनका जो एक सोचिए, मानवता के क्या सोचते हैं उसको लेकर के हम जानते हैं स्टूडेंट। इसलिए कहता हूँ कि हम किसी राइटर को पढ़ते हैं, एक इंग्लिश लिटरेचर में हम महान महान राइटर्स हुए हैं, दुनिया के वर्ल्ड की मोस्ट famous writers are there, and when we study those writers, those works of the writers, we study their minds, their extraordinary minds, their intellectual minds। उन महान दिमाग को हम पढ़ते हैं। गॉट इट? यस आर नो? यस आर नो? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यानी 126 जो पोयम हैं जो अपने यंग फ्रेंड को, मिस्टर WH को जो डेडिकेटेड है, उसमें से ये एक पोयम है। This sonnet is one of several that taps into the theme of writing and the power that the written word has or does not have। ये देखिए, into the theme of writing the and the power that the written word has or does not have, यानी जो लिखित जो शब्द होते हैं उसमें शक्ति है नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं मतलब उस पावर जो है राइटिंग को लेकर के, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। हम देखेंगे, आइए देखिए यहाँ पर ये चार, ये पूरी हम टेक्स्ट है यार, मैं आपको पूरा टेक्स्ट पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यार। अब यहाँ पर मैंने दिया ये पूरा जो राइमिंग स्कीम है, ये देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट नंबर 23 क्या है? ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा बाद में, अभी पहले यहाँ देखिए, स्टेज, who with his fear is put beside his part। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेज है, यहाँ पर पार्ट है, दोनों की राइमिंग नहीं मिल रही है, यानी स्टेज, स्टेज यहाँ की राइम अलग जा रही है, यहाँ की अलग, तो यहाँ से सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा, इसलिए यहाँ पर एक ए फर्स्ट लाइन को ए मान लेते हैं, फिर साउंड सीक्वेंस चेंज हो रहा है, राइमिंग चेंज हो रही है, तो उसको बी मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब थर्ड लाइन देखिए, और सम फियर्स थिंग रिप्लेड विथ टू मच रेज। ये देखिए थर्ड लाइन और यहाँ पर फर्स्ट लाइन, स्टेज, रेज, इज देयर राइम स्कीम, इज देयर राइम, आर these two lines are rhyming or not? First and third, first and third, these two lines are rhyming or not? आप देखिए यहाँ पर, yes or no, है ना। ये देखिए,
ये है ना, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों अंत में राइमिंग हो रही है सर, स्टेज और रेज, ये सर नो, ये सर नो स्टूडेंट। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, गॉट इट स्टूडेंट, यानी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में राइमिंग हो रही है, इसलिए इसको ए नाम दिया है, गॉट इट। फिर आप देखिए सेकंड लाइन, हु विद हिज फियर इज पुट बिसाइड हिज पार्ट। अब यहाँ फोर्थ लाइन पढ़े, whose strength abundance weakens his own heart। ये देखिए पार्ट, और यहाँ पर देखिए पार्ट एंड हार्ट, यानी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो हमारी थर्ड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है उसको उसका अंत में राइमिंग हो रहा है। अब समझ में आ रहा है ये सामने राइमिंग स्कीम है ना, ए बी का मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन की राइमिंग साथ में होगी, एक जैसी होगी, और सेकंड और फोर्थ लाइन की राइमिंग एक जैसी हो रही है, ए बी। यहाँ पर देखिए हार्ट अब हो रहा है ना, हार्ट देखिए, गॉट इट। एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा, पहले राइमिंग स्कीम को समझ ले। विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सी, सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से। अब यहां पर देखिए यहाँ हार्ट है और यहाँ से, यानी ये ना ए से मिल रही है ना बी से मिल रही है, यानी ये जो नेक्स्ट लाइन है इस लाइन की नेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्वाट्रेंस, है ना, चार लाइन को एक क्वाट्रेंस बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ये अलग हो गया, तो यहाँ जो फिफ्थ लाइन है हमारी ये इसकी राइमिंग अलग जा रही है, तो फिर इसको अगला क्या नाम दे दिया, उसको क्या बोल दिया सी, यानी नेक्स्ट साउंड थर्ड है ना, सी साउंड। सी का मतलब यहाँ पर है अगला साउंड आ रहा है, यानी ए बी, तो यहाँ पर इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, ये सर नो। यानी आप देखिए द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव्स राइड। अब यहाँ अगेन यहाँ पर किससे मैच नहीं हो रहा है, नया है तो सी डी, ठीक है। यहाँ पर डी, यानी ये से और राइट ये दोनों का साउंड मैच नहीं कर रहा है। एंड इन माइन ओन लव्स स्ट्रेंथ सीम टू डिके। अब ये देखिए से और डीके, ये सर से डीके बोथ आर राइमिंग आर नॉट, तो यहाँ पर क्या है सी सी, और यहाँ पर देखिए ओ ओवरचार्ज विद बर्धन ऑफ माइन ओन लव्स माइट। ये देखिए माइट राइट, है ना, ये माइट, ये देखिए राइट और माइट साउंड हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर क्या है ये डी है ना, एक तरीके से डी, यानी सी डी, यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि ये लाइन और ये राइमिंग कर रही है, और ये यहाँ पर ये और ये दोनों राइमिंग कर रही है, तो ये देखिए सी डी कहलाते हैं, गॉट इट, यस आर नो। मतलब अब यहाँ पर देखिए माइट, नेक्स्ट हम देखें, अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए ओ लेट माई लुक्स बी देन द इन एलोक्वेंस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइट साउंड आ रहा था अंत में, एलोक्वेंस यानी एक नया साउंड आ रहा फिर से, तो इसको अब अगला क्या हो गया, ई नाम दे दिया उसको, मतलब नेक्स्ट ई साउंड, यानी एक स्टेप बढ़ गई साउंड की, यानी ना वो ये वाले देखिए यहाँ न यहाँ से साउंड मेल खा रहा है, न बी से, न यहाँ पर न सी से, न डी से, ठीक है। नेक्स्ट साउंड आ रहा है इसलिए उसको अगला नाम क्या है, नया साउंड आ रहा है इसलिए उसको नया क्या है, ई साउंड। ई यहाँ पर ई नहीं हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस यानी नया साउंड, न्यू साउंड इज प्रोड्यूसिंग। एंड दम प्रेसेजर्स ऑफ माय स्पीकिंग ब्रेस्ट। अब ये देखिए इलोक्वेंस ब्रेस्ट, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी नया साउंड आ रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया, एफ। अब नेक्स्ट लाइन देखो, हु प्लीड फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस। ये देखिए यहाँ पर इलोक्वेंस और कंपेंस मैच कर रहे हैं, ऐसा नो, दे आर राइमिंग और नॉट, तो यहाँ पर क्या है ई और ई, इसीलिए, और एफ यहाँ पर देखो मोर देन दैट टंग दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड। ये देखिए है ना, ये देखिए ब्रेस्ट एक्सप्रेस्ड एफ एफ, तो इसलिए क्या है ई एफ। समझ में आ रहा है, ये क्वाट्रेंस है, क्वाट्रेंस में फर्स्ट और थर्ड लाइन का राइमिंग होता है। क्वाट्रेंस का मतलब होता है चार लाइन की एक स्टेंजा, आप मान लीजिए चार लाइन का एक स्टेंजा है, उसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन का राइमिंग होगा, और सेकंड और ठीक है।
ठीक है यहाँ पर, है ना। और ये जो हमारी सेकंड और फोर्थ का राइमिंग होगा। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, चलिए। एंड नाउ लास्ट टू, इन दोनों को कपलेट बोलते हैं। ये जो दो लाइन होती है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कपलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कपलेट। कपलेट मतलब होता है कपल, कपल से मिला, कपल मतलब टू, दो, कपलेट। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव विद रीड, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन वीट। ये देखिए, रीड, रीड, है ना, रीड, वीट, ये सार नो वो था। तो यहाँ पर क्या हो गया? जी, जी, यानी ये जो रीट वीट, ये ऊपर किसी से भी साउंड मैच नहीं कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द राइमिंग स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर। यस, ठीक है। नॉट कपलेट not couplet, I'm not talking about couplet। कपलेट, कपलेट का मतलब और कपल, स्पेलिंग देखो, COUPLET। कप प्लेट नहीं है, कप प्लेट। हाँ, कप और प्लेट दो चीजें होती है। यस, ये भी आप कह सकते हैं। गुड, नाइस। हाँ, उससे ही बना हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है ना। ओके, सी। So now let us discuss the explanation of this sonnet। सोचिए स्टूडेंट, बहुत डीप में सारी हैं। एज एन, यहाँ देखिए ब्रीफली मैं बताऊं, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। हम पढ़ रहे हैं सोनेट नंबर 23 का टेक्स्ट। आई एम हियर एक्सप्लेनिंग सोनेट नंबर 23 टेक्स्ट ऑफ द सोनेट नंबर 23। ब्रीफली लेट मी एक्सप्लेन। एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, है ना। शब्द देखे पहले, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। अनपरफेक्ट एक्टर, एक होता है परफेक्ट एक्टर और एक होता है अनपरफेक्ट एक्टर। एक अनपरफेक्ट, अपूर्ण, है ना, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सीखा हुआ नहीं है, नौ सीखे आप कह लो। ऑन द स्टेज, स्टेज पे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एज वी सी, एज वी नो, विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो एन एक्टर and he used to perform on the stage also, है ना। जानते हैं विलियम शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट है, प्लेइस्ट है। मोस्ट ऑफ द ड्रामाटिस्ट एंड प्लेइस्ट दे यूज्ड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। ठीक है। इज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, एक अनपरफेक्ट जो एक्टर है, अभिनेता है, वो स्टेज पे जब जाता है तो क्या होगा स्टूडेंट? चलो छोड़िए, एक आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू। सपोज if you don't habitual to speaking on the stage, suppose, and you give a suddenly you give an opportunity to deliver speech on the stage, from the stage, what will happen with you? And suppose 1000 people are sitting in front of you, there is a meeting, there is a occasion is going on, there is any kind of program is going on, and somebody called you upon the stage and requested to that to deliver a speech on the stage. What will happen with you? Will you speak with enthusiastic? Will you speak without hesitation or not? यदि आपको मंच पर बोलने का आपको अगर मंच पर बोलने की आदत नहीं है और 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं सामने, और आपको कहा जाए कि आप मंच पर आ जाइए, ठीक है, व्हाट विल हैपन विद यू? तो एक आप एक तरीके से अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो अनपरफेक्ट हो गए, मतलब वो आपको रियलाइज करवा रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। यस, ठीक है ना। हाँ, यस, इट विल, है ना। सो मेक इट हैबिट। सेम थिंग हैपन विद मी आल्सो, है ना। आई वाज वेरी शाई speaking on the stage। I do not speak even, I did not speak even a single word on the stage, but then I started learning, I started it। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, as an unperfect actor on the stage who with his fear is put besides his part। जैसा कि अभी यहाँ पर पूनम जी ने कहा कि जो शब्द इंग्लिश के और भी जो याद होते वो भूल जाते, वही चीज कह रहे हैं कि एक अनपरफेक्ट एक्टर जो होता है वो क्या करता है? विद हिज फियर, अपने डर के साथ में क्या है, जो चीजें उसको याद होती है ना, जो उसको बोलना होता है, जो उसको परफॉर्म करना होता है, वो भूल जाता है ना। यानी क्या होता है, कैसे स्टेज पे क्या हो रहा है, डायलॉग बोलना होता है, ये सार नो, है ना। व्हाट है ना, एक्टर का रोल क्या होता है, वो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो कई बार आपने देखा फिल्मों में 3 घंटे की मूवी बनने के लिए, आप देखिए, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी या और भी मूवी है ना, 2-2 3-3 साल
में एक मूवी बनती है, सोच सकते हैं आप स्टूडेंट, है ना, 3 घंटे। अब थिंक थिंक स्टूडेंट, द मूवी इज ओनली फॉर 3 आवर्स विद इन, है ना। आप देखिए 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए आप देखिए 3-3 साल लग जाते हैं। स्टूडेंट 3 साल से ऊपर लग जाते हैं कई बार। आप सोच सकते हैं यही बात है कि कोई अनपरफेक्ट एक्टर है, जैसा कि एक अनपरफेक्ट एक्टर होता है स्टेज पर, वो क्या करता है, डर के मारे, फियर के मारे, क्या है, वो उसका जो भूमिका होती है, बोलना होता है, वो भी भूल जाता है। और सम फियर्स थिंग रिप्लेड विथ टू मच रेज। थोड़ा सा यहाँ पर पहले इसके कुछ यहाँ पर वोकैब देख लेते हैं। जैसे फियर्स का मतलब है एंग्री, एग्रेसिव, या जैसा यहाँ पर आप देखेंगे कोई फियर्स थिंग यानी एक डरावने जानवर से, एक मतलब खौफनाक जानवर से, बहुत ही आप कह सकते हैं फियर्स, कुछ सही शब्द आप कह सकते हैं, डरावना, बहुत ही एंग्री, गुस्से वाला जानवर से तुलना आप कर रहे हैं यहाँ पर, एंग्री, एग्रेसिव। रिप्लेट का मतलब फिल्ड विद फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, बहुत ताकत से, पूरी ताकत से। रिप्लेट विद टू मच रेज, रेज का मतलब अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना, टू मच रेज, बहुत गुस्से से, है ना, इस तरीके से। और अबेंडेंस का मतलब भरपूर, है ना, आप देख सकते हैं। और सम फियर्स थिंग रिप्लेट विद टू मच थिंग्स, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है कि यहाँ तुलना कर रहे हैं, सिमिली का बहुत यूज हुआ है, जैसे एज, लाइक, इन सब का यूज होता है ना, सिमिली, मेटाफर आपको मालूम होगा, तो ये तुलना करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि और सम फियर्स थिंग रिप्लेट विथ टू मच रेज, यानी कोई ऐसी डरावनी चीज जो बहुत ज्यादा ताकत से, गुस्से से क्या करती है, हिम्मत से, क्या है ना, फियर थिंग रिप्लेट विथ टू मच रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंगर है ना। और तो ऐसे में क्या होता है, एक व्यक्ति हड़बड़ाहट में, एक तरीके से, है ना, उसको उसी तरीके से हड़बड़ाहट में वो भी क्या करता है, वो सब भूल जाते हैं। गुस्से में व्यक्ति क्या करता है, सब भूल जाता है, सब बड़ा बड़ा बोलता है, कुछ भी उसको ध्यान नहीं रहता है। एक गुस्से में व्यक्ति का एक अलग ही टेम्परामेंट होता है। whose strength abundance weakens, है ना, whose strength, जिसकी ताकत, abundance होती, बहुत ज्यादा भरपूर ताकत होती जिसके पास में, वो क्या है, weakens his own heart, ऐसा व्यक्ति का क्या है, हार्ट क्या हो जाता है, वीकन्स हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। वीकन्स ओन हार्ट, यानी दिल से ऐसा व्यक्ति क्या है, कमजोर हो जाता है। कई बार भरपूर ताकत, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में भरपूर ताकत होती है, वो क्या है, उसके हार्ट को, उसके एक तरीके से इमोशंस को कमजोर कर देते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हम यहाँ पर अब फिट है या नहीं है, थोड़ा मान ले आपने लॉयन के लिए, आपने लॉयन की बात करें, शेर की हम, या मान लें शेर की हम बात करें बेटा, आप देखिए यहाँ पर लायन, टाइगर, जो भी जो है, वो क्या है, उनके पास भरपूर ताकत है, और उस ताकत को क्या करते हैं, वो दूसरे जानवर को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। लेकिन उनके ऊपर दया आती है क्या, उनको दया करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, वो चिल्ला रहे हैं, है ना, उनको मार के खा जाते हैं, ये सार नो। तो ये क्या है, एक तरीके से वीकन्स, भरपूर ताकत भी क्या, एक तरीके से उनके हार्ट को कमजोर करती है। अब यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा हम और देखें, इन द फर्स्ट लाइंस ऑफ सोनेट 23 द स्पीकर बिगिंस विद क्राफ्टिंग अ मल्टी लेयर्ड सिमली, सिमली का बहुत यूज हुआ है ना। अनपरफेक्ट एक्टर से तुलना हो रही है, फियर्स थिंग्स से तुलना हो रही है, दैट कंपेयर हिज करेंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी क्या क्या है, करेंट स्टेट ऑफ माइंड, कैसा माइंड है उसका, ठीक वैसा हो गया है। जैसे एक बहुत ताकत वाला, गुस्से वाला जानवर है जो हड़बड़ाहट करता है, या फियर्स होता है वो, जो मतलब बिल्कुल किसी प्रकार से उसके अंदर इमोशंस नहीं है, हृदय में नहीं है ना, इस प्रकार के वो स्टेट ऑफ माइंड को व्यक्त कर रहे हैं। The first half of this simile starts with the speaker describing himself as an actor who doesn't know his lines or gets up on stage and forgets them, है ना। ये देखा कि हमने कि जो पहला हाफ है उसमें ये बताते हैं कि एक अनपरफेक्ट एक्टर जो होता है, जिस प्रकार से क्या है, वो लाइंस को भूल जाता है स्टेज पर जाकर के, है ना, वो सारी चीजें भूल जाता है जो उसको परफॉर्म करना होता है। टू मच फियर कीप्स हिम फ्रॉम रिमेम्बरिंग देम, टू मच फियर का मतलब है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो डर होता है, वो डर क्या करता है, कीप्स हिम फ्रॉम रिमेम्बरिंग थिंग्स, यानी डर के मारे क्या, बहुत सारी चीजें जो याद होती वो भी भूल जाते हैं। यस आर नो, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अल्टरनेटिवली ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ पावरफुल, और दूसरे में यहाँ देखिए तुलना कर रहे हैं, कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ पावरफुल फियर्स थिंग, जो बहुत ताकतवर, जो फियर्स यानी डरावनी जो होती है, उससे तुलना कर रहे हैं।
एन एनिमल दैट हैज टू मच रेज, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, एंगर है, both speak to him of the damage he is doing to him, both speak to him of the damage he is doing to himself। ये दोनों का उदाहरण दे करके वो बताना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या है, डर के कारण क्या है, वो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। द बीस्ट स्ट्रेंथ वीकन्स इट्स ओन हार्ट, जो ताकत होती है वो भी ऐसे में कमजोरी बन जाती है। इसलिए यहाँ पर एक तरीके से हम सकें कि वी मस्ट बी क्या है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड ट्राई टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन, है ना। इसलिए कहते हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, आप लिटरेचर को केवल यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण से ना पढ़े, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए भी पढ़े। मैंने पहले दिन कहा था आप लोग, I told you student that I promise you that your thought process will be changed, your attitude will be changed, because literature teaches us, it builds our attitude and our mindset up। Okay, yes or no, agree or not, agree or not? इसलिए कहता हूँ अपने एटीट्यूड को बनाएं, ईगल की तरह एटीट्यूड रखें, लायन एटीट्यूड जिसको कहते हैं। लेकिन है ना, ये देखिए ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं, डर नहीं, और किस बात का डर है। स्टेज पे जैसे मैंने मंच का आपसे कहा, मंच का मैंने आपसे कहा सपोज आपको बोलने जाना है, किस बात का डर है? जो लोग आपके सामने आज बैठे हैं कल नहीं बैठेंगे। आज से 10 साल 15 साल पहले जिनके समक्ष में भाषण दिया करता था, I used to speak in front of, I used to deliver speech in front of the people before 10 years and 15 years ago. Now those people are not around me, they are not around me, I have left them, they have left me, they are somewhere else right now। 10 से 15 साल पहले जिनके समक्ष में स्पीच देता था, गलतियां करता था, लोग हंसते थे, ठीक है, लेकिन आज वो लोग मेरे सामने नहीं, वो अपने अपने रास्ते चल दिए यार। समझ में आ रहा है? ये ना, इसलिए डर नहीं होना, और जब भी कभी डर लगे तो याद दिलाना, सोचना कि ब्लैंक है पूरा, सामने कोई नहीं बैठा है। रिमेंबर दैट नो वन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये किसी भी काम को करने के लिए डर लगे तो थोड़ी देर के लिए रुकना, क्योंकि कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट। और आप अगर कोई काम कर रहे हैं, क्या किसी ने पहले कोई काम किया है ऐसा? और अगर किसी ने भी, एक ने भी किया है, तो आप भी कर सकते हैं। मेक इट ट्रू। ओके, इसलिए डर नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड करके रखना है ना, अपने आप पर विश्वास रखना है। विश्वास ही सब कुछ है स्टूडेंट, है ना, विश्वास ही सब कुछ है माय डियर फ्रेंड्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? enjoying the summary of the sonnet or not? Yes, tell me, then we will move ahead। सोनेट अच्छी लगी या नहीं बताइए? सी, यहां पर देखिए, सो आई फियर फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से। अब यहां पर वो अपने ऊपर ले रहे हैं, सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से, है ना, चूंकि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर खुद भी एक्टर रहे हैं, वो कहते हैं फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट, यानी फियर ऑफ ट्रस्ट, यानी यानी एक तरीके से उनको डर के कारण, यानी डर के कारण, फियर ऑफ ट्रस्ट यानी उनको फियर पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया है, यानी एक तरीके से डर हावी है उनके ऊपर भी। तो क्या है, फॉरगेट टू से, वो भी खुद भी भूल गए हैं, भूल जाते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर, इट्स ह्यूमन बीइंग। The perfect ceremony of love's rite, the perfect ceremony of love's rite, यानी, और इसी कारण से क्या है, क्या भूल, forget to say the perfect ceremony of love's rite, यानी जो प्रेम की जो महत्वपूर्ण एक तरीके से सेरेमनी है, उसको क्या है, एक तरीके से भूल गए हैं, या अभिव्यक्त करना उसको क्या है, भूल गए हैं। एंड इन माइन ओन लव्स स्ट्रेंथ सीम टू डिके, यानी जो प्रेम की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। व्हाई? बिकॉज ऑफ फियर। एंड इन माइन, है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है? आई एम पुटिंग द, है ना, आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन, कौन सा प्रोनाउन है? टेल मी टुमारो। या किसी को भी मालूम है ये? ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जाना, ये क्या है देखना। एंड इन माइंड ओन लव्स स्ट्रेंथ सीम टू डिके, डिके मतलब डिक्लाइन होना। और ड्यू टू दिस फियर स्टूडेंट क्या है, उनका खुद का जो प्रेम का, यानी जो एक प्रेम उनकी ताकत है, लव्स स्ट्रेंथ, प्रेम की जो ताकत है वो क्या है, वो खुद भी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ फियर। और फिर क्या हो रहा है, ओवरचार्ज्ड विद बर्डन ऑफ माइंड
on love's might, overcharged with the burden of mind on love's might, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई बार जो ओवरचार्ज विद बर्डन, ओवरचार्ज का मतलब है कई बार जैसे प्रेम है या न्यूली कपल है, दे स्टार्टेड लविंग विद ईच अदर, और क्या होता है ओवरचार्ज होता है, और जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, कुछ और कह देते हैं, ऐसा होता है, यस और नो। तो यहाँ पर वो सारी चीजें क्यों ये सब ऐसा हो रहा है, क्योंकि भूल जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें, बिकॉज ऑल दी लवेबल पोएम्स, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, अभी थोड़ा सा हम एक बार और देखिए। इन द नेक्स्ट फोर लाइन्स ऑफ सोनेट 23 द स्पीकर एड्स ऑन टू दिस सेइंग दैट because of his way he feels he can't trust himself to say what needs to be said, he can't trust himself to say what needs to be said, मतलब जो कहा जाना है वो नहीं कह पा रहे हैं, है ना, जो कहा जाना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर। समझ में आ रहा है, ही इज वरीड, वो चिंतित है, क्या चिंतित है, देखिए क्यों चिंतित है, he hasn't or won't say the things he is supposed to say to his love the fair youth, the fair youth, है ना, जो एक्चुअल में जो फेयर यूथ को कह रहे हैं या कहना जो चाह रहे हैं, वो चिंतित है कि जो उसको कहना चाहिए था या जो नहीं, है ना, hasn't or want to say the things, यानी वो नहीं कह पाएंगे, supposed to say to his love, यानी अपने प्रेम को लेकर के, अपने प्रेम को लेकर के वो जो फेयर यूथ को जो संबोधित कर रहे हैं, शायद वो इस डर के कारण वो नहीं कह पाएंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज लव इज कंट्रास्टेड विद व्हाट इट इज डूइंग टू हिज माइंड, देखिए प्रेम उनकी ताकत है, बट बिकॉज ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, डर का माहौल है माइंड में, ठीक है, डर का माहौल है, वो कह नहीं कह पाते। चलिए एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू, सपोज देयर इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, है ना, सपोज यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड आपको एक और प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू, सपोज you invited for an interview in the any college or university, है ना, for the assistant professor, yes, है ना, और ये suppose for any teacher for any post you are invited and you prepared well, आपको किस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, महीने 1.5 महीने का आपके पास समय है, आपने बहुत तैयारियां करी है, बहुत शानदार आपने तैयारी भी करी है, और नाउ आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग भी है ना, आपका सब्जेक्ट, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, but suddenly what happens, you enters the interview in front of interview board, and then what will happen, they started asking you some questions, then what will happen with you student C, so इसलिए बोलते हैं कि इंटरव्यू के पहले प्रैक्टिस करें, जो याद है वो भी भूल गए, और जो बोलना था वो बोला नहीं, कुछ और बोल के आ गए, इट हैपेंस स्टूडेंट, इट हैपेंस, आई एम टेलिंग द रियलिटी। सो स्टूडेंट, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि हम जो याद करते हैं वो याद आता नहीं, स्टेट ऑफ माइंड जब कहीं और चला जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी वेरी काम, वी हैव टू टेक डीप ब्रीथ। One thing I would like to tell you, when you are losing your self confidence, when you are where your you can self confidence is decreasing, please have a seat, have a deep breath like that, a गहरी सांस ले, है ना, काउंट, है ना, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस, ग्रेजुअली यू विल गेट कॉन्फिडेंस, मेक स्टेबल योर माइंड, है ना, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। इट हैप या फर्स्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली, व्हेन एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग इट हैपेंड विद मी आल्सो, आई एम टेलिंग, जब शुरुआत में जब हम मंच पे बोलते थे, कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए, तो इट हैपेंस, यस ट्रूली आई फेस्ड, ठीक है, दिस थिंग्स, तो ये सारी चीजें हैं, बट यानी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो कई बार वीकनेस आ जाती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर, सो दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस, ओके, बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए, एज वेल एज हाउ वीक दैट मेक्स हिम फील, और ये चीजें उसको कैसा कमजोर महसूस कराती वो भी है, जस्ट व्हेन इट सीम टू बी एट इट्स पीक ही वाज वीकनिंग, है ना, और ये चीजें क्या है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, ये फील होता है। He is overcharged with the burden of his love's might, है ना, he is overcharged with the burden of love's might, just as the animal in the first lines was filled to the brim with rage, जैसे वो एक फियर्स जो जानवर होता है, जो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत गुस्से में, जो कंट्रोल नहीं होता है ना, वैसे ही क्या है, वो ओवरचार्ज है लव्स के कारण, प्रेम के कारण, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर नेक्स्ट कुछ पोएम्स और देखें, वो 9
लाइन 9 to 12 देखिए स्टूडेंट, ओ लेट माई लुक्स बी देन द एलोक्वेंस। आप क्या कह रहे हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, पेट्रार्कियन सोनेट या इटालियन सोनेट में वंस अगेन लेट मी रिमाइंड स्टूडेंट, दो प्रकार की सोनेट है मोस्टली। पेट्रार्कियन सोनेट जिसमें जो है ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, 8 लाइन जिसमें होती है, 8 लाइन में क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और 6 लाइन यानी 8 लाइंस को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये पेट्रार्कियन या इटालियन सोनेट है। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में क्या हो रहा है, 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं। 3 क्वार्ट्रेंस का मतलब है 4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेंस। कितनी लाइन हो गई स्टूडेंट, 12। और दो जो लाइन होती है उसको कपलेट कहते हैं। और साथ ही जो 9th लाइन होती है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए ये है ना 9th लाइन होती है, एक्चुअल में 9 लाइन से ही जो सॉल्यूशन कह लो वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और लास्ट की 2 लाइन में विलियम शेक्सपियर जो है सॉल्यूशन बताने का काम करते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। चलिए, ओ लेट माई लुक्स बी देन, ये देखिए देन द एलोक्वेंस। अब यहाँ पर पहले तो समस्या है भाई, डर के कारण ऐसा हो रहा है, डर के कारण वैसा हो रहा है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ही क्रिएटेड प्रॉब्लम, ये सर नो गॉट इट नाउ, है ना। एक तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे क्या, सॉल्यूशन क्या है, आप कह सकते हैं ओ लेट माई लुक्स बी देन द एलोक्वेंस, है ना। ओ लेट माई लुक्स बी देन द एलोक्वेंस। अब मुझे क्या है ना, अब मुझे क्या है, किस पे, एलोक्वेंस पर ध्यान देना है। एलोक्वेंस मतलब बोलने की तरफ, है ना। एलोक्वेंस, लेट माई लुक्स बी देन द एलोक्वेंस, लेट माई लुक्स बी, है ना, मुझे अपनी तरफ देखना है, देन द एलोक्वेंस, सॉरी, ओ लेट माई लुक्स, है ना, मुझे अपनी तरफ देखना है, देन द एलोक्वेंस अपने शब्दों की बजाय, एंड डम्ब प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट, डम्ब प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट, हु प्लीड फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस मोर देन दैट टंग दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस। देखिए, मोर देन दैट टंग दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ सोनेट द स्पीकर डिटरमाइंस, ये निर्धारित करते हैं, दैट द ओनली वे ही इज एक्यूरेटली गोइंग टू बी एबल टू गेट हिज इमोशंस अक्रॉस इज थ्रू राइटिंग। ये देखिए, अभी हमने बताया था ना कि क्या है, कि यहाँ पर केवल वो अपनी बात को क्या है, कैसे वो अपनी बात को कहे, वे ही इज एक्यूरेटली गोइंग टू बी एबल टू गेट हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या है वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो राइटिंग के माध्यम से। गॉट इट। हिज स्पीच एज अ फियरफुल एक्टर, यानी जो स्पीच दे रहे हैं वो क्या है, फियरफुल एक्टर है, एज अ फियरफुल एक्टर, यानी डरावने, एक तरीके से डरावने एक्टर की तरह, क्या इज गोइंग टू फेल हिम, यानी उनका भाषण जैसा कि वो फियरफुल एक्टर है, क्या है, उनको फेल कर देगी, असफल कर देगी। तो जो है अब उसको बोलने की बजाय क्या है, राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि राइटिंग में क्या होता है, इसलिए कहते हैं ना कि जो बात बोल के नहीं कह पाते वो आप पत्रों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कह देते हैं। आजकल चैटिंग खूब होती है सार नो, ठीक है। सो यू से, है ना, तो यहाँ पर जो है राइटिंग, जो है राइटिंग के थ्रू अपनी बात करें, थ्रू हिज बुक्स हिज लव विल हैव टू रीड हिज इमोशनल डेप्थ। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि इसलिए जो है मेरी बुक्स के माध्यम से क्या, उसकी बुक्स के माध्यम से, विलियम शेक्सपियर की बुक्स के माध्यम से क्या है, उनके प्रेम को, विल हैव टू रीड हिज इमोशनल डेप्थ, उनके इमोशनल डेप्थ को समझा जा सकता ओनली, है ना, उनके इमोशनल डेप्थ, लव, इमोशनल डेप्थ रिगार्डिंग लव कैन बी अंडरस्टूड थ्रू हिज बुक्स। दे हैव द एबिलिटी टू प्लीड फॉर लव, और ये जो राइटिंग वर्क, जो राइटिंग कर रहे हैं उससे क्या है, प्लीड फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस, देन हिज टंग डजंट एट दिस पॉइंट। क्या करेंगे, ये प्रेम के लिए एक प्लीड का, या ये एक तरीके से एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक खुशी का या एक माध्यम बनेंगे, जो कि टंग नहीं कर सकती। और इसीलिए क्या है, बहुत सारे लोग लिखने पर ज्यादा ध्यान देते, इवन इफ हिज टंग हैज इन जनरल सेड मोर थ्रू लाइफ। यद्यपि उनकी जो टंग है, देखिए स्टूडेंट बहुत गहरा है यहाँ पर, पूरे जिंदगी भर टंग ने, जुबान ने बहुत कुछ बोला है, इवन इफ हिज टंग हैज इन जनरल सेड मोर थ्रू लाइफ, पूरी जिंदगी भर जुबान दिन भर बोलती है, जिंदगी भर तो छोड़िए, दिन भर बोलती ना, ये सारनो, जुबान दिन भर बोलती है, नो मैटर, लेकिन जो लिख दिया वो अमर है, ये सारनो, दिस इज द पॉइंट, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हैज रिटन इन आज। और यही कारण है, अगर आज ये 14 लाइन विलियम शेक्सपियर ने
400 साल पहले नहीं लिखी होती, राइटिंग में नहीं की होती, केवल बोल के चले जाते, तो कोई याद करता आज? कोई याद करता आज? हम पढ़ रहे होते कि यस आर नो? इसीलिए उन्होंने राइटिंग पर ध्यान दिया है कि मेरे इमोशनल डेप्थ को, लव फॉर इमोशनल डेप्थ को जो है वो राइटिंग में उसको मैं मूर्त रूप दे देता हूँ, ताकि वो आने वाले समय में भी अमर रहे। और यही कारण उन्होंने यस हाँ, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। चलिए गुड। हाँ, अभी मेरी क्लास में कम बोल की होगी ना, बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। वन वे कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, है ना? ये भी हो सकता है। ठीक है, इट्स ओके, वी शुड स्पीक वेरी लेस, वी शुड लिसन मोर, है ना? इट इज सेड दैट कम बोलो ज्यादा सुनो, है ना? और ठीक है ना, ये और ज्यादा ये बढ़िया है। ओ लर्न, अब यहाँ देखिए लास्ट क्वार्टरेंस क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्वार्टरेंस। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रीड। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रीड, इसलिए वो कहते हैं प्रेम के बारे में उन्होंने जो कहा है कि ओ लर्न, वो कह रहे हैं कि सीखो भाई, क्या सीखना है? टू रीड, पढ़ना सीखो, व्हाट साइलेंट लव हैथ रीड, या यहाँ पर हाँ ओनली रीड एंड लिसन, ठीक है, गुड। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ राइट, ये राइट आप कह सकते हैं। यानी जो साइलेंट लव है, जो सीक्रेटली जो लव है, प्रेम है ना, वो क्या है, उसके बारे में उसको सीखो, समझो। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ राइट, यानी साइलेंट लव, आप कह सकते हैं कि उन्होंने साइलेंटली जो लिखा है विलियम शेक्सपियर, एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। टू हियर विद आईज, टू हियर विद आई, देखिए अपनी आंखों से, है ना? कोई टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन विट, ये देखिए, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन विट, लव्स फाइन विट, है ना? चूंकि अब यहाँ देखिए, आंख, सुनते तो हम कान से हैं, सुनते हम कान से हैं। देखिए यहाँ पर लिसन बड़ा बड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा, सुनते हम कान से, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? टू हियर विद आईज। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि जो आईज के थ्रू ही तो हम पढ़ेंगे, सीधे कान से थोड़ी पढ़ेंगे, ये आर नो? तो जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको क्या है, फील करना है, उसको ऐसा फील करना है कि हम सुन रहे हैं उसकी फीलिंग्स को, फीलिंग ऑफ लव, इमोशंस, ये आर नो? ये आर नो? ठीक है, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन वीट। तो ये जो है किससे संबंध रखती है? लव्स फाइन वीट, है। तो आप देख सकते हैं once again in the final two lines of sonnet 23, the speaker concludes by saying directly to his love, the fair youth, his love, the fair youth, that he should read in the books the things that the speaker is unable to say। वो अपने जो जिनको ये सारे पोएम डेडिकेटेड हो रही है उसको संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि वो मेरी फीलिंग्स को, मेरे लव फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को वो कहाँ पर पढ़ें, कहाँ पर सीखें? बुक्स के माध्यम से। जो मैं बोल कर नहीं बता पा रहा हूँ उसको मैंने लिख दिया है, आप बुक्स में पढ़ लेना। ये सारनो read upon the pages, and it is love hath read का मतलब right, upon the pages, and it is through love that the young will be able to interpret everything the speaker has been unable to say। love hath read upon the pages and it is through love, यानी जो प्रेम है वो क्या है, यानी कई पेजेस पे लिखा गया है, इट इज थ्रू लव, ये प्रेम ही एक माध्यम है, दैट द यूथ विल बी एबल टू इंटरप्रेट, यानी ये जो यूथ है, ये जो युवा है, वो क्या है, एबल टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट व्याख्या करने में सक्षम होगा, एवरीथिंग दैट स्पीकर हैज बीन अनेबल टू से, जो कि स्पीकर क्या है, अपनी बात कहने में असफल है। यानी जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो खुद उसको पढ़े और क्या है, इंटरप्रेट करे, समझाएं। जो स्पीकर बोल कर नहीं बता पा रहे हैं उन्होंने लिख दिया है, उस लिखे हुए को क्या है वो इंटरप्रेट करे, वो यूथ को संबोधित कर रहे हैं, एज आई एम इंटरप्रेटिंग। अब नाउ दी, ठीक है, तो कैसी लगी आपको सोनेट नंबर 23? यस आर नो?
चलिए, सो स्टूडेंट लेट्स start new sonnet number 24. Sonnet number 24 है कुछ selected sonnets we are having conversation student, and if you have sufficient time then you can study all these sonnets. All these sonnets are very interesting student, very nice, पढ़ना चाहिए. Sonnet number 24 क्या है? Mine eye hath played the painter and hath styled. बहुत प्यारी स्वीट पोयम है. देखिए 14 लाइन्स है स्टूडेंट, देयर आर ओनली 14 लाइन्स, है ना. देयर आर ओनली 14 लाइन्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो सोनेट नंबर 24 title is Mine Eye Hath Played the Painter and Hath Styled. Okay, so let's see. Okay, yes, now see, sonnet number 24, also known as Mine Eye Hath Played the Painter and Hath Styled, is the 24th of 154 sonnets that Shakespeare wrote over his lifetime. It is of the extended and well-known fair youth sequence of sonnets. ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं हम. अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए वंस अगेन थोड़ा सा आप देखेंगे इनका जो टेक्स्ट हम पढ़े, माइन आई हैथ प्लेड द पेंटर एंड हैथ स्टेल्ड. ये देखिए यहाँ पर, द ब्यूटीज फॉर्म इन टेबल ऑफ माई हार्ट, माई बॉडी इज द फ्रेम वेयर इन टीज हेल्ड. ये देखिए हेल्ड स्टेल्ड. ये देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या है, एक जैसा राइमिंग है इसलिए ए बोलेंगे इसको, फर्स्ट लाइन से मिल रहा है इसलिए ए इसको भी. The beauties form in table of my heart, fourth line, and perspective that is best painter's art. ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये बी और ये बी साउंड, क्योंकि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन मिल रही है, इसलिए आप समझ में आ गया ए बी. ये सर नो. तो फर्स्ट क्वार्टरेन में क्या राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वार्टरेन मतलब 4 लाइंस को क्वार्टरेन कह रहे हैं. देयर इज rhyming scheme A B in first quatrain of William Shakespearean sonnets. Got it? William Shakespearean के सोनेट में फर्स्ट क्वार्टरेन में क्या है? A B rhyming scheme. C. And prospect far through the painter must you see his skill to find where your tongue true image picture. अब ये देखिए स्किल यहाँ कहीं से मेल नहीं खा रही है, ए बी किसी से साउंड नहीं मेल खा रहा, तो यानी नया साउंड आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी. To find where their true image picture lies, ये फिर नया साउंड आ रहा है इसलिए क्या है यहाँ पर D. Which in my bosom's shop is hanging still. ये देखिए यहाँ स्किल और यहाँ पर स्टिल, ये क्या है? ये C यानी मेज खा रहा है. और that hath his windows glazed with thine eyes. ये देखिए lies और eyes यानी ये D. देखिए CD. I hope you understand the text. Once again, अब ये क्या है? ये जो है स्टूडेंट, ये सेकंड क्वार्टरेन हो गया. फर्स्ट क्वार्टरेन, सेकंड क्वार्टरेन. नाउ सी व्हाट गुड टर्न्स आईज फॉर आईज हैव डन, माइन आईज हैव ड्रॉन दाई शेप एंड दाइन फॉर मी. ये देखिए ये डन और मी साउंड अलग हो रहा है, राइमिंग. आर विंडोज टू माई ब्रेस्ट वेयर थ्रू द सन. ये देखिए डन सन है ना, यहाँ पे मतलब एक डी, यहाँ पर क्या हो गया ई, और ये नया साउंड इसलिए एफ, और ये डन सन यानी ई से मिल रहा है. डिलाइट्स टू पीप टू गेस देयर ऑन डी. ये देखिए मी डी, यहाँ पर साउंड मिल रहा है एफ. ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं येट आईज दिस कनिंग वांट टू ग्रेस देयर आर्ट. बहुत प्यारी सोनेट स्टूडेंट, आपको बहुत शानदार मजा आएगा इसमें. देखते हैं नया साउंड आ रहा है इसलिए जी. दे ड्रॉप बट व्हाट दे सी नो नॉट द हार्ट. जी साउंड है ना. ये देखिए तो ए बी सी डी ई एफ जी राइमिंग स्कीम इज देयर. ओके, ठीक है. चलिए, नाउ सी these are the 4 lines. क्या कह रहे हैं? Mine eye hath played the painter and hath styled. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक पहले क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पर 2 बातें आपको मिलेगी इस पूरे सोनेट में, आई और हार्ट. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आंखें जो देखती है उसकी पिक्चर हार्ट में बन जाती है. यस और नो, एग्री और नॉट? भाई आप मुझे देख रहे हैं है ना, ये पिक्चर आपके दिल दिमाग में बन रही है, कैसे है क्या है ना. यस और नो? और अभी आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट इमेजिन
I cannot make your picture, just I'm imagine कि ऐसे होंगे ऐसे होंगे, yes or no. So mine I had played the painter and had stilled. ये जो सोनेट नंबर, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सॉरी हम जो सोनेट पढ़ रहे हैं, सी है ना, 24 जो सोनेट हम देख रहे हैं, वो अपने एक तरीके से उनको कह रहा है ना, अपने प्रेम, आपको किसको, एक यूथ को जो है, यंग मिस्टर WH को, एक तरीके से वो अपना प्रेम है उसको वो कह रहे हैं, है ना, उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को आप एक तरीके से डेडिकेटेड सारी पोएम। तो देखिए, माइन आई हैड प्लेड द पेंटर, पेंटर मतलब आप समझते हैं पेंटर चित्रकार, एंड हैथ स्टिल्ड यानी मेरी आंखें क्या है, मेरी आंखें किसकी भूमिका निभा रही है, किसका रोल निभा रही है, एक पेंटर का रोल निभा रही है, एंड हैथ स्टिल्ड, और क्या है उस, और क्या है, जिन्होंने क्या है आपकी पिक्चर को स्टेल किया। और आजकल क्या है, हम लोग उस समय देखिए, ये सोनेट लिखी गई है, उस समय कैमरा नहीं था स्टूडेंट, उस समय ये जो हम फ्लैश नहीं, ये सब जो हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं, लेते हैं, है ना, ये सब नहीं था, पिक्चराइजेशन ये सब नहीं था, फिर भी उन्होंने इमेजिन किया, आंखों ने वो सब काम किया था। तो मेरी आंखें क्या कैमरे का, पेंटर का ये भूमिका निभा रही है, पेंटर की तरह, और मैं आपके पिक्चर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। द ब्यूटीज फॉर्म इन टेबल ऑफ माई हार्ट, ब्यूटीज फॉर्म किसको इंस्टॉल कर रही है, ब्यूटीज फॉर्म इन टेबल ऑफ माई हार्ट, है ना, यानी मेरे हृदय के जो, मेरे हृदय का जो एक आप कह सकते हैं जगह है, मेरे हृदय में क्या है, आपकी ब्यूटी के फॉर्म को, आपकी सुंदरता को, आपकी क्या है, मेरी आंखें पेंटर के, मेरी आंखें पेंटर का काम कर रही है, और आपकी सुंदरता को मेरे हृदय में क्या है, इंस्टॉल कर रही है, उतार रही है, चित्रित कर रही है। समझ में आ रहा है, ये सानो पेंट कर रही है, आपकी सुंदरता को पेंट कर रही है, कहां पर, हृदय में। कौन कह रहा है, विलियम शेक्सपियर। माई बॉडी इज द फ्रेम, मेरी बॉडी क्या है, पूरा फ्रेम है, मेरी बॉडी क्या है, एक तरीके से फ्रेम, फोटो देखते हैं ना, फ्रेमिंग का काम कर रही है मेरी बॉडी। वेयर इन इट्स टाई हेल्ड, वेयर इन ट्रीज हेल्ड एंड परस्पेक्टिव, इट इज बेस्ट पेंटर्स आर्ट, पूरी बॉडी फ्रेम का काम करें, पर्सपेक्टिव इट इज बेस्ट पेंटर्स आर्ट। और ये जो पूरा पर्सपेक्टिव क्या है ना, यानी पर्सपेक्टिव का मतलब है मेरा जो पूरा इमोशन है, मेरा जो भावना है, मेरी जो स्किल है, वो क्या है, बेस्ट पेंटर, एक श्रेष्ठ पेंटर की कला को निभा रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है, क्या पर्सपेक्टिव, की आंखों से देखना, पेंटर के रूप में उसकी ब्यूटी को अपने हृदय में उतारना, ये सब जो पर्सपेक्टिव है क्या है, बेस्ट पेंटर बना रहा है मुझे। आइए देखते हैं एक बार फिर से। In the first lines of Sonnet 24, the speaker begins by describing the whole work of eye. ये देखिए, आंखें काम कर रही हैं। It has as a painter created, it has as a painter created an image of the fair youth, यानी जो fair youth है, वह सुंदर youth है उसका, on the table of heart or his heart। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बहुत प्यारी सोनेट है, आपको पूरी सोनेट में मजा आएगा। This might also be read as the eye painting, आप कह सकते आंखों से पेंट करना, a picture or engraving an image of the youth on the speaker's heart। ठीक है ना, आजकल तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर, आंखों के ऊपर, ठीक है। और सी माइन आई रिपीट हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट में मतलब आगे और क्या है, द कैनवास, या कैनवास कह लो, पेपर कह लो, इंग्रेविंग विच इज प्लेस्ड ऑन द स्पीकर, यानी एक तरीके से कैनवास कहाँ रखा गया है, उसके हृदय में रखा गया, एक तरीके से, है ना, कि हम चित्र कहाँ बनाते हैं, कैनवास पे, पेपर पे बनाते ना, ये कहाँ पर है, हृदय में है। इज इन अ फ्रेम द स्पीकर्स बॉडी, है ना, यानी ये जो बॉडी है, ये फ्रेम है, बॉडी के अंदर जो हार्ट है, वहां पर क्या है, कैनवास रखा गया है, जिसपे पेंटिंग कर रहा है, कौन, आंखों के माध्यम से, आंखें पेंटर का काम करे। देयर इट इज हेल्ड सेफली, और जहां पर क्या है ये, जहां पर ये सुरक्षित है, हेल्ड सेफली, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता इसे, हिसाब में। The last line of this stanza is complex, alluding to an artist's ability to accurately convey perspective. It is the highest skill of a painter and one only these possesses। मतलब जो एक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये लास्ट लाइन में एक ऐसा पेंटर की बात कर रहे हैं जो बहुत सर्वश्रेष्ठ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्किलफुल है, उसकी बात कर रहे हैं, और चित्रित कर रहा है आपकी ब्यूटी को। यहाँ पर देखिए, फार थ्रू द पेंटर मस्ट यू सी हिज स्किल, फार थ्रू द पेंटर, अब देखिए, फार थ्रू द पेंटर मस्ट यू सी हिज स्किल, वो फेरी यूथ से कह रहा है
कि ये जो पेंटर के माध्यम से है आपको क्या है, मतलब स्किल को देखना चाहिए उसकी, है ना, जो स्किल है पेंटिंग करने की, उसके प्रेम को यानी उसकी ब्यूटी को उन्होंने जो चित्र किया उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। टू फाइंड वेयर यूर ट्रू इमेज पिक्चर्ड लाइज, ट्रू इमेज पिक्चर्ड लाइट, जहां पर क्या है आपकी जो सही सच्ची इमेज जो पिक्चर की गई है वो है। विच इन माई बॉजम्स शॉप इज हैंगिंग स्टिल, जो कहाँ पर है, बॉजम्स शॉप, बॉजम्स का मतलब है ना, आप देखिए बॉजम, बॉजम बहुत सुंदर सुंदर जो मतलब आप शॉप ऐसी है जहां पर सुंदर सुंदर फोटो टंगे हुए हैं, वहां पर आपकी पिक्चर चित्रित है, टंगी हुई है। That hath his windows glazed with thine eyes. That hath his windows glazed with thine eyes. ये देखिए, windows glazed with thine eyes। और ये क्या है, ये को ये कहाँ देख सकते हैं आप, आंखों में आप देखिए, जैसे कई बार हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो हमारी पिक्चर दिखती है। दाइन आइज, आपकी आंखें क्या है, विंडो का काम करेगी। आप आपकी आंखों के माध्यम से मेरे हृदय में चित्रित आपके चित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, the second quatrain continues to speak about the eye and its skill as a painter. क्या है, the second quatrain continues to speak about the eye and its skill as a painter, है ना, आंखों के बारे में है, और आंखें क्या, as a painter, it is through the painter the eye that you must see his skill, it is through the painter the eye that you must see his skill, यानी जो पेंटिंग की गई है उसके माध्यम से आंखों की स्किल को देखा जा सकता है। his eye is the only thing that allows access to image in his heart, है ना, whatever picture have been, you can say, drawn, painted in his heart, that can be accessed only through his heart, it is gateway to the heart, यानी आंखें क्या है, गेटवे है टू द हार्ट, है ना, आंखें क्या है, गेटवे, गेटवे एक तरीके से। यहाँ पर देखिए, नाउ सी व्हाट गुड टर्न्स आईज फॉर आईज हैव डन। नाउ सी, अब ये देखिए टर्न हो रहा है, नाउ सी, 9 लाइन्स देखिए, नाउ सी व्हाट गुड टर्न्स आईज फॉर आईज हैव डन, यानी आईज फॉर आईज हैव डन। अब देखिए, आंखें एक बार नहीं हजार बार देखती हैं, तो क्या अलग अलग प्रकार से आंखों ने किया है, सी उसको देखें। मान आईज हैव ड्रॉन, आंखें ही आंखें, है ना, आंखें भाई, आपकी आंखें अलग, मेरी आंखें अलग, दोनों आंखों ने क्या देखा है, माइन आईज हैव ड्रॉन दाई शेप, मेरी आंखों ने आपके शेप को ड्रा किया है, चित्रित किया है, एंड दाइन फॉर मी, ये देखिए, और आपकी आंखों ने मेरे शेप को, आकार को चित्रित किया है। सी आंखें ही आंखें क्या, आंखें अलग अलग आंखें हैं, वो बहुत दी आईज, eyes for eyes they have drawn the different picture, are windows to my breast where through the sun, ये देखिए, है ना, और ये जो मतलब जो मेरे सीने में एक तरीके से आप कह रहे हैं कि वो विंडोज का काम कर रहा है। वेयर थ्रू द सन, जहां से सन भी क्या है, वेयर थ्रू द सन, यहाँ पर सूरज भी आकर के आपके जो पिक्चर इमेज बनाई है उसको देखना चाहते हैं। डिलाइट्स टू पीप टू गेज देयर इन ऑन द ऑन दी, ये देखिए, डिलाइट्स टू पीप टू गेज देयर इन देयर ऑन दी, ठीक है ना, तो वो क्या है, यहाँ पर आपके जो चित्रित है उसको डिलाइट करना चाहते हैं, उसको खुशी देना चाहते हैं, उसको गेज करना चाहते हैं, कौन, सूरज भी निहारना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। Yet eyes these cunning want to grace their heart, यहाँ पर देखिए, एक और होगा यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो है फाइनली आंखों की यहाँ पर गलती नहीं है। Yet eyes these cunning want to grace their art, यानी आंखें तो क्या है, बार बार दिस आर्ट को ग्रेस करना चाहती है, इसको चित्रित करना चाहती है। दे ड्रा बट व्हाट दे सी, अब देखिए दे ड्रा, है ना, इसमें आंखों की गलती नहीं है, ऐसा क्यों, व्हाई, बिकॉज व्हाट एवर वी सी वी कैन नॉट स्टॉप वाचिंग, वी कैन नॉट स्टॉप सीइंग, वी सी, हमारी आंखें, हमारा नजरिया होता है, हमारा नजरिया होता है देखने का, यहाँ पर केवल आंखों से केवल जो चीजें देख रहे नहीं है, वो नजरिए की बात कर रहे होते हैं, है ना। देयर इज अ सेइंग, एक कोटेशन है कि नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं। दिस इज द ट्रू पिक्चर स्टूडेंट। Yet eyes is these cunning want to grace their art, they draw but what they see, no, no not the heart, ये देखिए, वो तो वही चित्रित करती है, they draw but what they see, यानी आंखें केवल वही चित्रित करती है, वही पिक्चर इमेज को क्रिएट करती है, वो देखती है, नो नॉट द हार्ट, और हार्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द होल
of the poem. The third quatrain tells the listener, the fair youth, listener को यहाँ पर प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट, the fair youth है ना, listener, that he needs to look at the good turns or favors that their eyes have done one another, यानी एक दूसरे के लिए जो आंखों ने किया है उसके बारे में बताते हैं. The speaker's eyes have drawn the youth's shape, यानी स्पीकर की आंखों ने क्या है, यूथ के शेप को ड्रा किया है. And the youth's eyes are windows to the speaker's breast. ठीक है, ठीक है. And youth's eyes are windows, है ना, youth's eyes are windows to the speaker's breast. ठीक है, स्पीकर के ब्रेस्ट के लिए क्या है, सीने के लिए क्या है, जो यूथ है उसकी आईज विंडो का काम कर रही है. He can look into the youth's eyes, वो यूथ की आईज में क्या है देख सकते हैं. See his reflected eyes, अपनी जो आंखें रिफ्लेक्ट हो रही उसको. And his eye reflections look into his own heart, और उसकी आंखें जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसके हार्ट में देख सकती है. स्टूडेंट बहुत ही प्यारा ये क्या है, द सन आल्सो लाइक्स टू लुक देयर, है ना, सूरज की भी उनके हृदय में उतर के देखना चाहते हैं क्या, उनकी सुंदरता को जो चित्रित की गई है डीप इनटू द यूथ्स आईज. इट डिलाइट्स एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सूरज में व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, टू गेज देयर ऑन दी, है ना, यानी उनकी जो उनकी जो ब्यूटी को चित्रित किया गया है, पेंटिंग किया गया है, उसको सूरज भी निहारने के लिए आना चाहते हैं. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, anyone tell me what is personification, anyone tell me. It is a figures of speech. Let me tell you student, personification, it is the example of personification. The sun also likes to look there deep into the youth's eyes. It delights an example of personification to gaze there on thee. ठीक है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ये क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है. और पर्सोनिफिकेशन मीन्स ना बड़ा चढ़ा के बोलना है स्टूडेंट, बड़ा चढ़ा के नहीं कह सकते हैं. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि ये देखिए द सन, ये द सन को कह रहे हैं कि सूरज भी आपकी हृदय में प्रवेश करके आपकी सुंदरता को निखारना चाहते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ द सन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स आप कह लीजिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ टू एड्रेस नॉन लिविंग थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग. समझ में आ रहा, देयर इज पर्सोनिफिकेशन. कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम ह्यूमन बीइंग के रूप में एड्रेस करते हैं, उसको मानव के रूप में एड्रेस करते हैं. वहां पर पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण अलंकार, है ना, होता है. ये सारनो व्हाट इज, जैसे आपने किसी से, जैसे मैंने कहा पेन से, है ना, बट पेन से कहा कि आप बहुत चलती हो, आप बहुत लिखती हो, बहुत बहुत थैंक यू, आई एम टॉकिंग टू माई पेन. सो ये पेन इट इज नॉन लिविंग थिंग्स एक्चुअली. हालांकि ये है ना, आई द पेन कैन नॉट डिस्कस विद मी, we cannot have conversation, but I am just telling pain, you are really, you cooperate with me, you are very nice, है ना. तो मैं पेन से कह रहा हूँ, तो पेन यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन मैं इससे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे ये मनुष्य है, जैसे ये मानव है. तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं लिविंग की तरह, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है. समझ में आ रहा है ये सारनो. चलिए अब आगे देखते हैं. इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, लास्ट टू लाइन क्या है, द स्पीकर कंक्लूड्स, क्या कंक्लूड करते हैं, बाय सेइंग दैट हिज आईज आर स्किलफुल, उनकी आंखें कैसी है, स्किलफुल है, वेरी स्किलफुल, बट दे लैक द एबिलिटी टू सी इनटू द यूथ्स हार्ट. लेकिन आंखों की क्या कमी है भाई, ये तो स्किलफुल, लेकिन क्या कमी है, लैक द एबिलिटी टू सी इनटू द यूथ्स हार्ट, लेकिन वो यूथ के हार्ट में नहीं देख सकते. वी कैन नॉट, आंखें जो अंदर आपके हृदय में क्या है वहां नहीं देख सकती है. दिस मीन्स they can only draw what they see and that does not include the heart. और इसका मतलब ये है कि आंखें केवल वही चित्रित करती है, they can draw, only draw, केवल उनको चित्रित कर सकती है, पेंट कर सकती है जिसको वो क्या है, what they see, जिसको वो देखती है, and that does not include the heart, और उसको हृदय से कोई लेना देना नहीं होता है. ब्यूटीफुली यहाँ पर नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं. ठीक है ना, दिशा बदलो बोलते ना, कि देखिए ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, है ना. यहाँ पर देखिए कि दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं, नजर बदलो
नज़ारे बदल जाते हैं स्टूडेंट, इट हैपन्स इन आवर लाइफ। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट, एंड वंस अगेन आई रिमाइंड यू दीज आर आवर कोर्सेस, एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी sonnets? Tell me, give me feedback. Do you like the sonnets written by William Shakespeare? Yes, tell me. You enjoy the class, today's class? Yes or no, student? बहुत अच्छा लगा? Yes or no? सोचिए, हमने we discussed two sonnets only in the, and आप सोच सकते हैं कि there are 154 sonnets written by William Shakespeare and they are very very extraordinary. Fine. ठीक है, thank you very much. और let's end the class. Thank you all the intellectual students. I thank you very much, and once again I tell you, revise the class, have confidence, बार बार पढ़े, रिवाइज करें, पॉइंट नोट करें, लिखें, अपने हाथ से लिखें, बार बार फैक्ट को याद करें, and you will crack the examination. Thank you very much.